welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is section 40 of the Indian Contract Act 1872, which deals with the concept of who should perform the promise. It means promise किसको perform करना है. So guys, before we move on, if you are new to my channel and you have not subscribed it yet, please subscribe my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section. So guys, let's get started with section 40. Prior to this section, guys, I've already covered section 37, 38 and 39. Do watch those videos also because हम किस concept को study कर रहे हैं? It is called the discharge of contract. And I've already told you beforehand, जब हम videos को, I've made a video on section 37. I've told you beforehand कि we are going to start a video lecture series on discharge of contract. It means after the formation of a contract, next step is to discharge it. उसको आप किस तरीके से पूरा कर सकते हो? So there are 4 methods of discharging a contract and we are beginning with by performance. It means you simply have to perform your promise और जब आप उसको perform कर दोगे तो आपका contract will be discharged because you have certain rights and obligations. जब आप उन rights and obligations को पूरा कर दोगे by way of performance, your contract will be discharged. So उसमें हमने section 37, 38, 39 already cover कर लिए. They are very important और आपको उन videos को पहले देखना है, उसके बाद आपको ये समझ आएगा because even in section 40, I'll be giving you a reference of section 37. So अगर आपको नहीं पता, you will find it difficult to understand. So guys, section 40 basically talks about कि promise को कौन perform कर सकता है. So what do you think? एक promise को perform किसको करना चाहिए? Who should perform it? Obviously the general answer is that the promiser himself has to perform it. Understood है कि जिसने promise किया है उसी को perform करना है. This is the general rule. And moreover guys, section 40 में हमें 2 words बहुत importantly समझने हैं. अगर आपको वो समझ आ जाते हैं तो ये section complete हो जाएगा. I've underlined those 2 words for you, which is the nature of the contract and the intention of the parties. ये 2 words बहुत important है. Section 40 बोलता है कि general rule तो यही रहेगा कि promiser has to perform his promise, but more often than not, it depends upon the nature of the contract and intention of the parties to the contract. So beginning with the nature of the contract, section 37 में paragraph 2, I've already told you कि there are 2 types of contracts. Special contracts भी होते हैं, general contracts भी होते हैं. Special contracts are those contracts which involve special skill, talent, knowledge and expertise of a person. क्योंकि these skills, knowledge, they vary from person to person, so nobody can mimic or imitate the other person. आप दूसरे इंसान को copy नहीं कर सकते. For example, if I talk about a renowned artist or if I talk about a singer, तो उनका जो स्किल है, जो टैलेंट है, इट इज़ यूनिक टू देम. आप उनको कभी भी इमिटेट नहीं कर सकते. नोबडी कैन कॉपी देम एज इट इज़. तो इनको हम बोलते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर एंटर्ड इनटू बाय पीपल हैविंग सम स्पेशल स्किल, नॉलेज और एक्सपर्टाइज. तो क्योंकि वो एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट इज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय दैट पर्सन हिमसेल्फ, द प्रॉमिसर हिमसेल्फ. सो एज अ जनरल रूल तो क्या रहेगा कि जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, इट इज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय दैट पर्सन इटसेल्फ, क्योंकि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा है कि इट इज़ अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. बट ऑन द अदर हैंड इफ इज अ जनरल कॉन्ट्रैक्ट, जनरल कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ए सेज टू बी दैट आई विल बी सेलिंग यू 100 bags of rice. नाउ अगर बिफोर परफॉर्मेंस, सपोज फर्स्ट को इन्होंने प्रॉमिस किया 1 जनवरी 2021, ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर, जहाँ पे ए ने बी को कहा कि आई विल बी सेलिंग यू 100 bags of rice. ना उसने कहा कि आई विल बी सेलिंग यू ऑन 10th जनवरी. ना बिफोर परफॉर्मेंस, बिफोर 10th जनवरी, अगर ए को कुछ होता है, ए में डाई, कुछ भी हो सकता है, ही मे बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ए मे मीट एन एक्सीडेंट, वॉट एवर, कुछ भी ए को हो सकता है, तो वहाँ पे ए विल बिकम अ पर्सन हु इज अनेबल टू परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट. बट क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ऐसी है कि इट इज़ जनरल इन नेचर, इट कुड बी परफॉर्म्ड बाय एनीबडी, क्योंकि उसमें कोई स्पेशल टैलेंट या स्किल की जरूरत नहीं होती है. सो एज अ जनरल रूल क्या रहता है कि अ प्रॉमिसर हैज़ टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, बट मोर ऑफन देन नॉट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, विच इज ईदर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और अ जनरल कॉन्ट्रैक्ट. Special contract is to be performed by that specific person only because it involves use of expertise and skill of a person which is unique to a person itself, right? और दूसरा होता है general contracts. As the term itself indicates, general contract can be performed by any general person. It means या तो ए वो खुद perform कर सकता है या वो अपनी डेथ के बाद उसके legal representatives will be bound to perform it. Understood है कि legal representatives will be bound and they will be entering into a contract with B so as to dispense it, so as to fulfill that promise. अब guys यहाँ पे general rule तो हमने study कर लिया, which depends upon the nature of the contract. But sometimes what happens is कि parties का intention different होता है. Intention का मतलब होता है
इसी को हम समझने की कोशिश करना, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी परफॉर्म्ड बाय दैट स्पेसिफिक पर्सन हिमसेल्फ, सिर्फ उसी को परफॉर्म करना है, ये जनरल रूल है विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, सेक्शन 37 पैराग्राफ 2 में भी मैंने आपको समझाया था कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स although as a general rule, as a nature of contract, special contract is to be performed by that specific person himself, but अगर वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, सपोज एक सिंगर एक थिएटर कमेटी के साथ, मैनेजमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस टाइम पे इट इज़ अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट विच इज एंटर्ड इनटू बाय दिस पर्सन। एज अ जनरल रूल ही हैज़ टू फुलफिल इट, बट वाइल एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद दैट थिएटर मैनेजमेंट, वो लिख सकता है कि इफ़ something happens to me on so and so date and I may not be appear, मैं नहीं आ सकता, तो वहाँ पे my wife Mrs. A will be singing on my behalf. It means एज अ जनरल रूल क्या है, एज अ जनरल रूल अगर हम नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो वहाँ पे it is something which is to be fulfilled by the promisor himself, but if contrary intention appears from the terms and conditions of the contract, so it can be, even a special contract can be fulfilled by somebody else. Similar is the case with general contracts. General contracts को generally तो कोई भी इंसान पूरा कर सकता है. If A dies, A के legal representatives will be bound to deliver those bags to B by 10th of January. But what happens is कि कई बार जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ये होता है कि पीपल वेल एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर, वहाँ पे वो कुछ अपनी अग्रीमेंट में ऐसे टर्म्स लिख देते हैं जहाँ पे बीइंग अ जनरल कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो ए लिख सकते हैं कि इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू मी टुमारो, गॉड फॉरबिड इफ एनीथिंग हैपन्स टू मी टुमारो, सो यहाँ पे विद माई डेथ ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट विल ऑल्सो कम टू एन एंड. इट मीन्स मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बाउंड नहीं होंगे. जनरल रूल क्या रहता है जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स में कि अगर एक इंसान नहीं परफॉर्म कर पाता, इट मे बी परफॉर्म्ड बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स. उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो बाइंड हो जाएंगे. और ये हमें कहाँ से पता लगता है, सेक्शन 37 पैराग्राफ 2 बताता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी बाउंड इन केस ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स. बट कई बार कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्ररी इंटेंशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि इवन अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मे बी परफॉर्म्ड बाय समबडी एल्स, एंड कई बार व्हाट हैपेंस इज कि अ जनरल कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी परफॉर्म्ड बाय समबडी एल्स, क्योंकि कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. आई होप गाइज आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ. आपको सबसे पहले सेक्शन 37 जरूर देखना है, सेक्शन 37 पैराग्राफ 1 एंड 2. पैराग्राफ 2 इज रेलिवेंट हियर, और फिर हमने सेक्शन 40 के साथ क्लबिंग करके इसको रीड करना होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आए कि यहाँ पे नेचर और इंटेंशन का क्या मतलब है. ये दोनों पॉइंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स हैं. नेचर बोलती है कि स्पेसिफिक और जनरल दो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. स्पेसिफिक और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी परफॉर्म्ड बाय दैट स्पेशल पर्सन हिमसेल्फ, एंड जनरल इज टू बी परफॉर्म्ड बाय एनीबडी. बिफोर परफॉर्मेंस अगर उस इंसान को कुछ होता है प्रॉमिसर को, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को करना है. ये सेक्शन 37 पैराग्राफ 2 से पता लगता है. नेचर हमें सिर्फ इतना ही बताती है. बट इंटेंशन का मतलब क्या होता है, इंटेंशन मीन्स अगर तो इंटेंशन पार्टीज की क्या है कि प्रॉमिसर को परफॉर्म करना, तो प्रॉमिसर विल परफॉर्म इट. लेकिन अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज कई बार कॉन्ट्ररी इंटेंशन भी अपीयर होती है. उस पॉइंट को भी समझना बहुत जरूरी है. तो वहाँ पे कॉन्ट्ररी इंटेंशन होगी तो इवन अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म बाय समबडी एल्स. ए की जगह मिसेज ए कैन सिंग, क्योंकि बी ए ने ऑलरेडी अपनी एग्रीमेंट में ये इंटेंशन कॉन्ट्ररी इंटेंशन सिग्निफाई की थी टू द अदर पार्टी. और अपोजिट होता था जनरल कॉन्ट्रैक्ट में कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म्ड बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, बट इट मे नॉट बी परफॉर्म्ड, क्योंकि कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो आई होप गाइस आपको समझ आया कि सेक्शन 40 ऑल इन ऑल बोलता क्या है. बहुत इंटरेस्टिंग है. आपको सिर्फ और सिर्फ क्लबिंग करनी है दो सेक्शंस की, आपको समझ आ जाएगा. सो रीडिंग द बेयर एक्ट लैंग्वेज नाउ. बेयर एक्ट लैंग्वेज बोलती है कि इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस, अगर आपको नेचर से समझ आता है, you know that it was the intention of the parties to any contract, दो पार्टीज हैं, अगर तो उनका इंटेंशन है. अब देखो नेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड करती है इंसान की इंटेंशन. अगर वो स्पेसिफिक होगा तो इट इज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय दैट पर्सन हिमसेल्फ, और अगर जनरल है तो इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स. सो बोलते कि इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस दैट इट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट एनी प्रॉमिस कंटेन्ड इन इट, कोई भी प्रॉमिस सिंगिंग और डिलीवरिंग बैग्स, ठीक है, should be performed by the promisor himself. Promisor himself as a general rule, right? Such promise must be performed by the promisor himself. अगर promisor, if it is the intention of the parties कि सिर्फ promisor ही perform करेंगे, तो general rule तो promisor ही perform करेंगे, he has to perform it. But contrary intention also appears, वो section 37 clause 37 paragraph 2 बताता है. और ये last line बहुत important है. इन अदर केसेस, यानी कि जहाँ पे
कॉन्ट्ररी इंटेंशन है, जहाँ पे प्रोमिसर मे और मे नॉट परफॉर्म इट। जनरल रूल क्या है कि प्रोमिसर को परफॉर्म करना है, बट मैंने आपको इसका कॉन्ट्ररी इंटेंशन भी समझा दिया। तो इन अदर केसेस ऑल दोज कॉन्ट्ररी इंटेंशन केसेस आर कवर्ड हियर। In other cases, the promisor or his representatives may employ a competent person to perform it. So either the promisor has to perform it or his legal representatives have to perform it according to section 37 paragraph 2. या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ए ने अपनी जगह मिसेज ए को भेज दिया, competent person, any competent person to perform it. So I hope guys आपको समझ है, competent मतलब 18 years or above any person who is able to contract in India, जो इंडिया में according to Indian Contract Act 1872 according to section 11 जो contract कर सकता है, तो वो competent person होगा। सो आई होप गाइज आपको समझ आ गया कि इस सेक्शन 40 में है कि बहुत ईजी है, सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्शंस को हमने एक साथ रीड किया है। सो थैंक यू सो मच गाइज, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज, आई विल बी ब्रिंगिंग मेनी इंटरेस्टिंग सेक्शंस एंड आई विल बी ट्राइंग टू कंप्लीट दिस कॉन्सेप्ट वेरी सून। सो थैंक यू सो मच गाइज, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।